All right, let's move on to the next panel, which is about evaluating beauty education. Training और education कितना important है beauty professional के लिए, ये हम कल से सारे experts से सुन रहे हैं. पर आज का जो हमारा panel है वो उन experts के भी experts हैं, क्योंकि ये सालों दे चुके हैं education के लिए, और now they are bringing to you hot topics, hot tips on how education is the best thing that you can offer to your staff. I would please request Seema Jairajani to step on the stage. Seema is a hair educator and author, and her long journey in the Indian salon industry is aligned with the growth of the industry itself. After a long and successful stint of running a salon in Mumbai, Seema is now a dedicated educator with students thronging to her for her basic and advanced courses. Welcome, Seema. Thank you. Please. Afternoon. My next speaker is Unnati Singh, celebrity beauty and bridal expert. She needs no introduction. She is an international beauty educator and founder and director of Unnati Singh, the Phoenician School Beauty Education. She has trained over 500,000 students and professionals. Welcome, Unnati. Thank you for you. Please put your hands together for these two experts. My third panelist for today is Disha Meher, Principal Expert, Beauty and Wellness Urban Company. She is responsible for training and educating the beauty workforce of at-home services. There she is. Disha, please step on the stage. And let's have a round of applause for her. And my final panelist for today is Mahesh Ravaria, co-founder and CEO of Beauty Garage. He's at the helm of a brand that upholds training and education as one of its strongest pillars. And we are very happy to have you on board, Mahesh. मेरी रिक्वेस्ट है सारे पैनलिस्ट से कि जितना हो सके हिंदी में कॉन्वर्जेशन करें. हिंदी इज़ द बेस्ट कनेक्ट फॉर आवर ऑडियंस टुडे. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सवाल एंड ऑफ द सेशन के लिए बचा के रखें. ओके, सो एजुकेशन एक बहुत ही रेजिंग टॉपिक है, एंड जो मेन इशू है ब्यूटी एजुकेशन को लेके वो है यूनिफॉर्मिटी और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. हमारे पास इंडिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं है. सीमा, आई विल स्टार्ट विथ यू. डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सैलून्स टू हायर स्टाफ that have had uniform education training? Good afternoon, everybody. Welcome to the SMC. Thank you and congratulations for completing 11 years. Thank you. So, uniform education बहुत necessary है, especially जो positions है जहाँ responsibility ज़्यादा है. Yeah. Means when you're looking at aesthetician, जो senior most है, या people who are between the senior and management, तो उस positions के लिए it's very essential कि आप जिसको ले तो वो qualified हो. Like there are city and guilds exams that are conducted in India which has standardization of education. So things like that, you do get qualification जैसे CIDESCO है. At least you know that some standard has been given, some theory has been done, practicals have been conducted. There is a certain level of education. लेकिन क्या होता है जो basic level पे होते हैं afford भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक interest रहता है, passion है, तो हम दोनों चीज़ consider कर सकते हैं कि जो beginners level है, एक शुरुआत करनी है, maybe they don't have the funds, but they have थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहता है, तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं. लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको ये भी सोचना है कि हमें एजुकेशन लेना है. लाइक एग्जांपल, आई हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर यू लर्न 1 week and come back for the next week after 6 months if you can't pay the fees. Okay. So there are modules. Yeah. So मेरा ये सजेशन है कि आप बिगिनर्स लेवल है या तो आप विद मिनिमम एजुकेशन चल सकता है. लेकिन जैसे पोजीशंस ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं, इवन कट्स, कलर्स और फेशियल्स और दिस इज कंसर्न, देन
ज़रूरी है कि you take an educated or a qualified person. Right. Thank you. Unnati, what would you like to add to this? यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक सेट पैटर्न पे वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरी, जैसे अब अगर हम IVQ की बात करें, इंटरनेशनल वोकेशनल जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, ऐसे हर कंट्री की अपनी NVQ भी होती हैं, हम अपनी वो सेट कर सकते हैं। और इसके लिए जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं जो इस फील्ड में हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। सीमा जी ने यहाँ पर बोला कि कई लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे पाते हैं। मुझे नहीं लगता पैसे की वजह से किसी की एजुकेशन कभी रुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे आते हैं। हम लोगों ने भी बहुत लोगों को ट्रेन किया, सारे ब्रांड साथ में आते हैं। इवन जो क्वालिफाई हो चुके हैं एज ए ट्रेनर पहले, वो लोग भी आए, उन्होंने भी आकर के काफ़ी सारी एजुकेशन दी। उसका मगर एक सेट पैटर्न होना चाहिए। मेन हमारे संग क्या है, एक थोड़ा सा ईगो होता है हमारे अंदर। हमको लगता है कि हमारा जो पैटर्न है वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है। जब भी हमको ये फील हो कि हमारे पैटर्न में कोई चेंज लाना चाहिए, हमें करना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में हमने IHB के संग ज्वाइन किया। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको श्रीलंका भेजा 25 दिन के लिए। दे वेंट फॉर अ ट्रेनिंग, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम था। और वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनके पास एक एजुकेशन का सेट पैटर्न था। मैं चाहती थी कि वो चीज़ हमारे हिंदुस्तान में आए, हमारे इंडिया में आए, और हम उस पैटर्न पे वर्क करें जो कि यूनिफॉर्म है सभी ब्यूटी एक्सपर्ट और हेयर ड्रेसर्स के लिए। उसमें किसी कंट्री का कोई रोल नहीं है कि हम बोले कि हम श्रीलंका क्यों करें या हम UK क्यों करें। हम लोग अपने आप में बहुत सक्षम है, बट कहीं ना कहीं हमने उस पैटर्न को ढंग से बनाया नहीं है, ऐसा मुझे फील हुआ। Right. Disha, from your perspective, how important is uniform training? Good morning, good afternoon, I should say. You'll have to hold the mic a little closer. Yeah. Good afternoon, everybody. Uniform education definitely need hai. I'm not denying that, but I have a little different opinion around it. मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में जहाँ पे ब्यूटी इंडस्ट्री है, बहुत काम हो रहा है उसके ऊपर, और हम भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई कम फ्रॉम एन एजुकेशन बैकग्राउंड जहाँ पे आई हैव ऑलवेज बीन अ ट्रेनर फॉर द पास्ट 20 years एंड आई हैव कम अक्रॉस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें ग्राउंड रियलिटी भी देखनी पड़ेगी। आज की तारीख में सब बच्चों को सेम एजुकेशन नहीं मिल पाता है, राइट? तो ये बोलना आसान है कि हमें सबको स्टैंडर्ड एजुकेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन देना है, बट जो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं हो रहा है। आज हम उनको ऑन जॉब ट्रेन कर रहे हैं एंड वी इंश्योर कि फंडामेंटल्स सबके सेम है, राइट? आई पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट उन्नति सेइंग, व्हाट सीमा इज सेइंग कि जिनको सीखने की चाह है हम उनको सिखाते हैं, हम उनको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, हम उनको बोलते हैं ये फंडामेंटल्स आप ठीक कीजिए, उसके बाद आगे कैसे ग्रो करना है वो बाकी की बात है। बट आपका फंडामेंटल्स ट्रेनिंग, यस, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर आप हेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हेयर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे टाइप के हेयर होते हैं। आप स्किन कर रहे हैं तो बेसिक हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि एपिडर्मिस के, स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर के हम फाइब्रोब्लास्ट के बारे में हम नहीं बात कर रहे उसके बारे में। हम बोलते हैं फंडामेंटल्स, बेसिक सबको सेम होना चाहिए, जो कि हम, आई थिंक एवरीबडी सिटिंग हियर ऑन द पैनल वी डू दैट। फंडामेंटल यूनिफॉर्मिटी एट द ग्राउंड लेवल इज इंपॉर्टेंट, बट वी कांट बी वेरी स्ट्रिंजेंट कि नहीं यही होगा तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हम आगे, नहीं तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। Yeah. Right. So this is where we stand as the Indian salon industry. Mahesh, from a brand perspective, आप भी काफी trainings hold करते हैं, तो what would you like to add to this? Can you check the mic, please? I think it's no. I agree with Disha. What she said, that the basics has to be clear, because as a brand perspective, because when we do an R&D department works, so we keep on getting new innovative products. So technology keeps on changing. Right now also, the people are looking for new generation product. So uniform in terms of upgraded cannot be same. Yeah, basics can to be same. The basic has to be very clear, because each and every time whenever you see in the future, new technology will keep on upgrading. So education will keep on going. Every step we educate ourselves. That's my take on this. Right. तो आप सबके opinions के मुताबिक there is basic training and there is advanced training. Seema, I'm coming back to you. तो जहाँ basic training होती है वहाँ आप कह रहे हो कि थोड़ा 19-20 चलता है. When you're hiring somebody at a basic level, if you can give them hands-on training, that is fine. But advanced level पे they should come with trained background.
19-20 तो मैं भी नहीं चला लेती हूँ. So it's like somebody is absolute fresher Yeah. but can't afford it. Like, I mean, I beg to differ from Unnati, but I have cases where they've not been able to afford it, and I have taught free also. Yeah. But unless they've come to a certain standard, वो clients पे नहीं कर सकते हैं. जी. Means अगर किसी को कम knowledge है, तो हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं, और उसके बाद हम उसको क्लाइंट्स पे अलाउ करते हैं. तो वैसे बिकॉज मेरा सलोन नहीं है, आई एम ओनली इनटू एकेडमिक्स. Yeah. सो इवन एज एन एकेडमी हम ये ध्यान रखते हैं कि सर्टेन लेवल उनका ट्रेनिंग पहले हो. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सलोन्स, तो यू कैन हैव अ मिनिमम ट्रेनिंग एज व्हाट दिशा सेड, लेकिन आप अगर हायर कर रहे हैं फॉर हायर पोस्ट, एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच इज़ रिकग्नाइज्ड, यू नो कि ये स्टैंडर्ड के लोग हम ले रहे हैं, तो हमें ये परफॉर्मेंस मिल सकेगा, एंड वी विल नॉट हैव एनी क्लाइंट्स कंप्लेनिंग. बिकॉज आजकल यहाँ इतना नहीं हो रहा है, लेकिन अब्रॉड आप जाएंगे तो बहुत सू करते हैं, लीगल केसेस होते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी यहाँ भी होने लगे हैं, पर ये ज़रूरी है कि हम इतना एजुकेशन दें कि ये प्रॉब्लम्स ना हो फ्यूचर में. बिकॉज अभी क्लाइंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आई मीन्स नॉलेज है उनको, एंड दे कैन sue you if you do wrong. आजकल वो हाइड्रोफेशियल्स का कुछ बहुत लीगल प्रॉब्लम बड़ा हो चुका है, तो वैसे हो सकता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ यू सी दैट योर पर्सन इज एजुकेटेड, या you send them for the education. Yeah. If you don't have the staff, you pay the monies, tell the student, the person to spend maybe part of it, 50% the salon can pay, 50% the person who is working can pay, लेकिन उनको educate करें, and then the responsibilities can given them. Right. उन्नति, प्रीवियस पैनल में जब भी हम स्टाफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, तो अशोक जी ने कहा कि सर्टिफिकेट्स भी लोग लेके आते हैं और क्वालिफिकेशन भी दिखाते हैं, पर जब वो लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, द वर्क इज़ नॉट अप टू द मार्क. सो इस समस्या का क्या हल हो सकता है? इसीलिए हमको ये देखना चाहिए वो सर्टिफिकेट किस लेवल का और किसने दिया है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, तो अवार्ड्स, आजकल इतने अवार्ड्स ऐसे सब्जी भाजी की तरह मिलते हैं, आप देखते होंगे. तो मगर वो अवार्ड किसने दिया और किस वजह से दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. वो इम्पोर्टेंस है आपके लिए. तो जब भी कोई अवार्ड होते हैं, कुछ भी, हमने कई लोगों को देखा इस तरह से डालते हुए, और फिर स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं कि हमने उनके संग सीखा. हम लोगों ने एक पैटर्न रखा है, क्योंकि एक हाल ही में एक स्टूडेंट को मैंने आइडेंटिफाई किया. 14 साल का बच्चा है, मदर इज अ सिंगल पेरेंट, ही इज़ वेरी गुड इन नेल्स. मैंने उबैद को फ़ोन किया ग्लैम में तुरंत, कि जबकि हम उनसे कोई बिजनेस इतना नहीं देते हैं उनको, बट आई कॉल्ड हिम. हमने कहा उबैद, एक बच्चा है, बहुत अच्छा है, उसको आपको पूरी फुल ट्रेनिंग देनी है, और देनी है. आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग, आई एम सेइंग, आई एम आस्किंग दिस फॉर यू. ही सेड बिल्कुल हम करेंगे. ऐसे ही हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हमारे टच में रहते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनको, जो आपको लगता है सच में है. क्योंकि इस बार आपने देखा होगा नेशनल प्लेटफॉर्म पे ब्राइडल कॉन्टेस्ट में भी और हेयर में भी, दोनों हमारे ही स्टूडेंट और स्टाफ ने नेशनल जीता है इस बार. तो इट्स वेरी बिग थिंग. थैंक यू. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको बोलते हैं आप पूरी लाइफ के लिए हमारे स्टूडेंट हो, पूरी लाइफ के लिए. आई ऑलवेज से दैट टू ईच एंड एवरीवन. आपने 2010 में कोर्स किया, 2023 में भी उतने ही शान के संग आइए. जो भी लेटेस्ट चल रहा है उसको सीखिए, उसका आपको फीस नहीं देना है. हाँ, जो भी आउटडोर होता है, जो भी जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको किसी होटल में जाना है, आपको ट्रैवल करना है, दैट यू हैव टू पे. नहीं तो वो उसको महत्व नहीं देंगे, उनको लगेगा अरे ऐसे ही है, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है उनको ये बताना कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत. आई वॉज डूइंग मेडिकल, आई लेफ्ट दैट टू कम इन ब्यूटी फील्ड. तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रूव करना था, और क्योंकि बीएड और एमएड किया मैंने, आई हैव डन मास्टर इन एजुकेशन, तो एजुकेशन की वैल्यू मैं समझती हूँ किस तरह से करना है. तो जो सर्टिफिकेट की आपने बात बोली, वो सर्टिफिकेट किस बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूट से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को रन करने वाले जो डायरेक्टर हैं, जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, वो इंपॉर्टेंस रखती है. सीमा जी के यहाँ से कोई सीख के आएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि भाई आपके यहाँ से सीख के आए. नेचुरली सबको मालूम है किस लेवल पे पढ़ाई की होगी, कितनी डांट पड़ी होगी, सब मालूम होता है. जी. इसी से जुड़ता हुआ सवाल है आप दोनों के लिए. तो सर्टिफिकेट तो स्टाफ जो आप हायर कर रहे हो उनका आप देख लेते हो, ये भी जांच कर लेते हो कि किसने पढ़ाया है, लेकिन
जो कोर्सेज होते हैं उसमें प्रैक्टिस करने का उतना मौका नहीं होता है. ऑब्वियसली जब वो सैलून में आते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती होनी ही है. तो उस सिचुएशन के लिए आप स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करते हो? I'll start? Okay. इसके लिए हम लोगों के यहाँ जो कोर्स का पैटर्न है वो पूरे टाइमिंग के हिसाब से है, और मुझे कहते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, खुशी होती है कि हम लोग IHB के पैटर्न को फॉलो करते हैं. उनके आवर्स हैं, पूरे क्लास का पैटर्न है, कितनी देर की थ्योरी होगी, कितना प्रैक्टिकल है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और यू आर डूइंग फेशियल, आपने कोई भी ऐसे पॉइंट प्रेस कर दिए जिससे कभी कभी आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है, आपको पता नहीं है ये चीज़. आपने हेड वॉश के समय कोई ऐसा पॉइंट प्रेस कर दिया, उससे क्लाइंट को हेडेक भी हो सकता है. तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये मसाज करने वाले हैं, फेशियल करने वाले हैं, या जो कलर करने वाले हैं, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपके क्लाइंट को पीस दे सकती है, रिलैक्स कर सकती है. क्योंकि सैलून का तो मतलब ही सिर्फ रिलैक्सेशन होता है. जो भी आता है, जो भी खुश होता है वो सैलून आता है, या फिर बहुत दुखी होता है वो सैलून आता है. हमेशा आपके घर में शादी है, आएंगे, तैयार होंगे, या बहुत डिप्रेस हो गए तो चलो सैलून चलते हैं, कुछ करवा के आते हैं. तो दोनों सूरत में हमें क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं करना है. तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जब भी हम एजुकेट करके किसी को जाते हैं, जिसने भी किया, अपने सैलून्स किए हैं, क्योंकि पैटर्न इस तरह से है सिखाने का, उसमें लोग जॉब करना उतना पसंद नहीं करते. दे वांट टू रन देयर ओन थिंग. Yeah. इस तरह से रहता है, बिकॉज वो समझते हैं उस चीज़ को कि आगे किस तरह से वो बढ़ सकते हैं. तो हम उस पैटर्न को सेट कर सकते हैं, और उसमें प्रैक्टिकल जो स्किल्स है, हैंड्स ऑन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. सिर्फ बिल्कुल. बोलने से कुछ नहीं होता. तो आप देखेंगे, अब मैं आज भी काम करती हूँ, आज भी रेगुलरली 4 to 5 हेयर कट, 1 मेकअप, एवरी डे आई डू दैट. मैं करती हूँ अभी भी. Okay, that's really inspirational. Seema, Could you repeat the questions, please? so when a salon is hiring staff and they look at the qualifications, the certification, everything, but hands-on training थोड़ी कम होती है, प्रैक्टिसिंग थोड़ी कम होती है, तो ऑब्वियसली फ्लोर पे जाने के बाद कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं. तो आप अपने स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? अभी जो मेरे ट्रेनिंग होती है वो हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप की है. सो जैसे मेरा कोर्सेज मॉड्यूल्स के हिसाब से 1 वीक कोर्स है, तो एक हफ्ते में हम सिखा पाते हैं, लेकिन होमवर्क नहीं होता है, उनका प्रैक्टिस होती है क्लास में. तो हाउ आई डील विद इट इज़ कि मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और मुझे फोटोग्राफ्स भेजें. सो ऑन अ रेगुलर बेसिस वो लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड फोटोग्राफ्स भेजते हैं. देन आई यूज़ अ नोट, सो मैं उन पे ड्रॉ करके उनको रिस्पॉन्स, आई कैन गिव देम फीडबैक. सो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 महीने तक भी भेजते हैं, 8 साल भर भी भेजते हैं फोटोग्राफ्स, एंड आई हैव गाइडेड देम. कई स्टूडेंट्स को या तो टाइम नहीं होता है या इंटरेस्ट नहीं होता है, तो यू कांट हेल्प देम. बट जिसको दे आर रियली कीन, उनके फोटोग्राफ्स आते हैं एंड आई डू द करेक्शंस एंड आई गाइड देम ऑलवेज. जैसे उन्नति जी ने बताया कि एक बार उनके स्टूडेंट है तो ऑलवेज द स्टूडेंट कैन कम बैक. फॉर मी द स्टूडेंट्स कैन सेंड देयर फोटोग्राफ्स कभी भी, एंड मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ नॉर्मली आफ्टर क्लास, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैं खुद सिखाती हूँ, तो उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ. सो फॉर मी ऑल्सो दे आर माई स्टूडेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम. That's wonderful. Disha, coming to you, टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी स्टाफ है आपका वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कस्टमर के साथ उनके होम ग्राउंड पे. तो हाउ डू यू पुट दैट टुगेदर? ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई गो बैक टू द सेम. Yeah, सॉरी, sure. आई हैव एन ओपिनियन देयर. आई थिंक जो हम बात कर रहे थे कि हम ट्रेनिंग देने के बाद जब गलती करते हैं, हाउ वी फंक्शन, एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस यहाँ पे जितने भी लोग हैं, we believe in 2 more type of training. One is refresher training and one is retraining. Okay. Right? So we ensure that हम continuously एक refresher करते हैं जो हमारे passed out students है या बहुत टाइम से कर रहे हैं. जो भी नई चीज़ें हम लॉन्च करते हैं हम उनको बोलते हैं refresher training, क्योंकि नई चीज़ें आती रहती है मार्केट में, and we ensure कि वो सीखते रहें. And retraining is when they commit a mistake. राइट? अगर कोई गलती करता है, और ये ह्यूमन है, होगी ही गलती, सभी से होगी. आज मैं भी करने जाऊंगी, आईब्रोज बहुत साल पहले किए, शायद आज करने जाऊं, आई विल फ्लिक समबडीज आईब्रो, राइट? बिकॉज हैंड्स ऑन नहीं है. व्हाट उन्नति सेड, यू हैव टू बी हैंड्स ऑन, राइट? सो आपसे अगर गलती होती है तो आपको रीट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 100%, राइट? आई थिंक our business is completely customer experience. Yes. Right? Whether Yes. it is offline, online, it is about customer experience, right?
आज मैं इधर भी आई हूँ और अगर मुझे कोई गेट के ऊपर गुड मॉर्निंग बोलते आई फील नाइस, राइट? तो यहाँ तो आई एम गोइंग टू समबडीज हाउस, राइट? दैट इज व्हाट ऑल एट होम इज ऑल अबाउट. तो द वे दे ट्रीट, सो हमारे ट्रेनिंग के अंदर इफ आई हैव टू पुट 100 hours, I do 20 hours of theory, right? Remaining 80 hours is practical, and out of that 80 hours also I would say around 25 hours is soft skill. Okay. How do you ring the bell? How do you greet somebody at the door? How you ask for a space in somebody's house, right? If there is a pet somewhere, they don't like to be called ki apne kutte ko side mein rakho, right? What I mean to say, so smaller we get into the granular details about it. बहुत छोटी छोटी बातें हम उनको सिखाते हैं. So soft skill plays an extremely important role, and we invest a lot in soft skill training. The way they groom and the way they talk to the customer, very, very important. Absolutely. Soft skills is right now a part and parcel of salon experience. Mahesh, coming to you, आपका क्या experience होता है जब आप अपने trainers salon में भेजते हो for product training or any kind of updates with the salon staff? Are they satisfied with the level of training that the salon has, the knowledge that they have? So, sorry, I have a bad throat. So, what experience मैंने gain किया है जितने भी trainers हमारे यहाँ field में काम कर रहे हैं मेरी company के अंदर. So when they go to a salon, the first problem is the salon stylist always feels I know everything. Don't take me wrong, but that's the ground reality. Whenever you go to a salon, whenever my trainer will go, they will feel that मुझे सब कुछ आता है, ये कौन आ गया सिखाने के लिए. First thing. Second, it takes time for a trainer to build a relationship with the stylist who is in the salon. उनके साथ में बात करके उनको comfortable feel करा के कि आपको सब कुछ आता है, but मैं मेरे product के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ. It's not about कि I'm going to challenge your basic skills. So वो एक 15-20 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद में थोड़ा कंफर्ट आने के बाद में then we start doing our training setup. So yeah, definitely because वहाँ पे agenda बहुत clear होता है कि we have to talk about our product and how they have to use our product. So we always in our training module also we make our trainer कि you have to little bit highlight the basics before you start with the product. So बहुत बार ऐसा होता है salon के अंदर जब जाते हैं for hair for example, cuticle cortex medulla है, 3 लेयर है हेयर के अंदर, उसके बारे में भी बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है. मतलब ये हुआ है, ये ग्राउंड रियलिटी है. हम कितना भी एजुकेशन में ट्रेनिंग करने के बाद में आज कोई काम कर रहे हैं, 1 साल उन्होंने काम नहीं किया, फिर दोबारा फील्ड पे आ गए, उनको कुछ पता ही नहीं है. सो क्यूटिकल में भी लेयर्स है, ये है, उन्हें काफी चीजें है. तो वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर ट्रेनर सो दे आर नॉट स्टक एनीवेयर, बिकॉज देयर आर फ्यू सैलून ओनर्स आल्सो हु आर स्टाइलिस्ट. सो दे आर वेरी गुड, दे नो ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दे आर रेगुलरली ऑन फ्लोर. सो वहां पे हम हमारे ट्रेनर को इतना एजुकेट करते हैं कि वहां पे क्वेश्चन में फॉल बैक ना हो. सो दिस इज द थिंग. सो बेसिकली एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेनर ऑल्सो एंड फॉर अ स्टूडेंट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की गलतियां होती है, हमारे ट्रेनर्स हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, हर एवरी क्लाइंट इज अ डिफरेंट चैलेंज व्हेन दे टेक द हेयर इन देयर हैंड. बिकॉज आई एम फ्रॉम हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर. सो हर बालों का रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में अलग ही होता है. सो टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड डू द ट्रीटमेंट, आई थिंक that's how the education has to keep on coming up. So as a brand who sends his trainers to salons, is there any advice that you would like to give to salon owners? No such advice, but yeah, definitely जब ट्रेनिंग के लिए जाते तो कुछ बताने आए हैं, कुछ नया अपग्रेड करना है, तो आई वुड लाइक टू से टू द ओनर्स कि जब भी ट्रेनिंग हो तो एटलीस्ट स्टाफ को बोले कुछ नया सीखने मिलेगा. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड बी फ्री. बहुत बार क्या होता है जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं स्टाफ फेशियल कर रहे हैं, फिर आके देखते हैं 15 मिनट का टाइम है, पेडिक्योर कर रहे हैं, फिर आके देख रहे हैं. तो दिस इज अ चैलेंज व्हाट एज अ ब्रांड वी फेस. द डेडिकेटेड टाइम स्लॉट हैज टू बी देयर व्हेन यू आर टेकिंग बुकिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एनी ब्रांड. सो वो 3 घंटे या 4 घंटे उनको और कुछ नहीं, उनको ट्रेनिंग पे फोकस, तो ही वो ग्रैब कर पाएंगे. एक बार में कोई भी चीज 100% ग्रैब नहीं होती है. So at least 50-60% if they can grab, 40% they have their own brain to do it. Got it. उन्नति जी, आपको कुछ बोलना था. I want to advise something here. Yes. Whenever any brand is sending trainer, जब भी कोई ब्रांड किसी ट्रेनर को किसी सैलून में भेज रहा है, प्लीज एक अच्छा सा रिस्पेक्टिव डिजिटल बना के दीजिए कि हमारा ये ट्रेनर है, इस ब्रांड को फोकस कर रहा है, हम आपको ये सिखाने वाले हैं. थोड़ा सा ब्रीफिंग उस ट्रेनर के बारे में जरूर होना चाहिए,
कि वो कहाँ से ट्रेंड है और क्या है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। जब भी कोई ट्रेनर हमारे यहाँ आता है, मैं हमेशा पर्सनली या जो भी मैनेजर होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, टीम से इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। हम लोग नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट से ही शुरू कर देते हैं और ब्रांड वाले अपनी चीज़ें बताते हैं, तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। क्योंकि जो ट्रेनर है वो भी एजुकेटर है, जब भी शिक्षा की बात आती है वहाँ पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आई फील सो। मेरा अगेन आप दोनों से सवाल है, क्योंकि महेश ने कहा कि उनके ट्रेनर्स जाते रहते हैं सैलून में अपग्रेड्स देने के लिए। क्या सैलून्स की तरफ से कभी रेजिस्टेंस हुआ है कि हम अपने स्टाफ को हायर ट्रेनिंग नहीं देंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी ब्रांड से मिल रही है? ऐसा कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही टीम जाती है ट्रेनिंग के लिए। जी। कभी ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन दरवाजा खोला और ट्रेनर खड़ा हो बाहर। आपको पहले से पता होता है, आप अपने पूरे स्टाफ को, जब भी हम लोगों ने जैसे नेचुरल सभी किया था, वी वर इन चेन्नई फॉर दैट, और पूरे उनके जो स्टार सैलून्स थे उन्होंने 2 पार्ट में की थी ट्रेनिंग, एक जो रेगुलर थे उनके लिए और एक उनके जो स्टार सैलून्स है। तो उसमें वो पूरे अपने जो है बेस्ट हेयर ड्रेसर को लेके आते हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं बैठ के, तो उनका उस दिन का लॉस भी हो रहा है साथ में। तो उनके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है, क्योंकि जो सैलून चलाते हैं वो पैसा गिनते हैं पूरे टाइम। तो जो ट्रेनर होता है वो सोचता है कि उसका प्रोडक्ट कैसे भी, बिकॉज वो किसी ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर एजुकेशन जरूरी नहीं है ब्रांड के साथ में हो, समटाइम इट्स फ्रीलांसिंग ऑल्सो, लाइक सिर्फ हेयर हो रहा है या मेकअप किया जा रहा है, जहाँ हम ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मगर अगर हम जो ट्रेनर है उसकी ब्रीफिंग अच्छे से देंगे, सब लोग बहुत कीन होकर के उसको सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि मुझे याद है जो सेशन 4 बजे खत्म होना चाहिए वो हमेशा 6 बज जाते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सीमा? ऐसे नहीं है कि सिर्फ ब्रांड्स की ट्रेनिंग हो तो, बट बिकॉज जैसे उन्होंने बताया नेचुरल्स है, वैसे ग्रीन ट्रेंड्स है, देयर आर मेनी कंपनीज, ब्लैक में है, तो वो इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग्स करते हैं तो ऐसे नहीं कि कोई ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करते हैं, बट एक जेनरिक ट्रेनिंग होती है जो उनको आगे ले जा सकती है और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए। So they are open to good trainings, quality trainings. For example, like if you're doing makeup, आज मैं सिर्फ क्रायलन या सिर्फ मैक नहीं यूज़ करती हूँ, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कंपनी के होते हैं उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं Across the brands across use the कर रहे हैं। brands. So this is not brand sensitive, but it is what is the best for the company or for the clients, depending on what is our brief. आप दोनों की एग्जाम्पल्स में आपने चेन सैलून्स का जिक्र किया है, पर हमारी ऑडियंस में मोस्टली स्टैंड अलोन सैलून्स है, मोस्टली सिंगल ओनर हैं, दे आर द क्रिएटिव पर्सन। सो ऐसे सैलून ओनर्स को आपकी क्या एडवाइस होगी? शुड दे बी सेंडिंग देयर स्टाफ फॉर एडवांस ट्रेनिंग? Yes, they do. जैसे अभी नलिनी यास्मिन्स है, उनकी एक सैलून है, तो उनके भी स्टाफ है, तो वो भी बेचते हैं कि भाई हमें एक स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है। ऐसे स्टैंड अलोन सैलून्स हैं, तो कभी कभी 50% जो हेयर ड्रेसर है वो पे करते हैं, 50% स्टाफ, आई मीन द क्लाइंट, द ओनर ऑफ द सैलून पेज। तो इट डिपेंड्स कि उनको अपडेटिंग की ज़रूरत कितनी है। कभी कभी यू नो यू जस्ट गोइंग फॉर लाइक हाफ अ डे ट्रेनिंग। जी। सो वैसे स्टैंड अलोन सैलून्स भी करते हैं ऐसी ट्रेनिंग्स, स्पेशली जो अभी मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्राइडल सीजन है या सिर्फ पार्टी के लिए जाना है, सो दे वांट टू अपडेट देयर हेयर ड्रेसर्स Yeah, कि थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर सके, तो वैसे भी ट्रेनिंग्स करते हैं। got it. Disha, what kind of brand collaborations do you have for trainings? Do you have brands coming and training your staff? हमेशा राइट जिन भी ब्रांड के साथ हम काम करते हैं, सी राइट नाउ तो वी ऑल्सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव आवर ओन प्राइवेट लेबल, बट स्पेशली फॉर हेयर वी हैव L'Oreal's and we have O3's and all, and we definitely call for these master classes, right? And master classes are, see, the scale that I function at, right, 25-40,000 people across the country, सबको बुला बुला के ट्रेनिंग करना थोड़ा मुश्किल है. So what we do is we train the trainers, right, and then we have these recorded sessions, right? Okay. And that's when how we reach out to everybody in the industry, my people that are working in the industry. तो हम मास्टर क्लासेस में बहुत बिलीव करते हैं, एंड ब्रांड कोलैबोरेशन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रांड, बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि वो भी चाहते हैं कि उनका ब्रांड सही तरीके से यूज हो, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोई गलती ना हो, वहाँ पे कुछ इशू ना हो, एंड ब्रांड आर मोर देन हैप्पी
बहुत खुशी से वो आके हमें ट्रेन करते हैं. Not only brand, as they were saying, we also call for experts from the industry, right? So हम उनसे भी master classes कराते हैं, हम brand के साथ भी collaboration करते हैं, and I think everybody understands the importance of continuous training. I don't believe in one-time training. I believe in continuous training, right? It's a gradual process और ये होते ही रहना पड़ेगा till end. All of us sitting here are always under some study, and we are doing some courses after 20 years of experience. Yeah. राइट सो ये कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये होता रहेगा. लेकिन आपकी इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, सो हाउ डू यू एंश्योर दैट एवरीबॉडी इज अंडर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग? See, that's what we do. We have different measures, right? We have Yeah. grading systems. We have their the number of उनके क्या points हैं, right? उनके कितने star है, 5 stars है, 4.5. So we have a lot of stringent marking there, and we have a threshold कि इतने के नीचे जाएगा तो they need a refresher training. I'm not saying they are not fit to work with us, Yeah. but we are saying they need a refresher or they need a retraining. So we have a complete system in place, and we call them for training. They have to undergo a training process, very very stringent. We just don't compromise there. और पूरे इंडिया में जैसे मैं बोल रही हूँ 45,000 people are there. We ensure there is an entire workforce around 100-200 people only working on that to ensure कि सबकी grading same है, and we give them a quality education on a continuous basis. Right. So continuous education is the key to keep your staff motivated. Now I'm leaving the floor open for questions. अगर आपके कोई सवाल है हमारे experts के लिए about staff education and training, please raise your hands. So Before we go ahead, I just want to put one more point. Sorry. Yeah. जब हम basic qualification की बात कर रहे थे, तो I think even government of India has done a lot of things. I appreciate that we go to international education system and we get those education because बहुत एडवांस है और उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है. बट इंडिया में भी अभी बहुत कुछ हो रहा है. देयर इज एन रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, RPL, जहाँ पे हम बोलते हैं कि आपके प्रायर लर्निंग को हम एक वैल्यू दे रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो स्टैंड अलोन, बहुत सारे ऑडियंस में भी ऐसे हैं जो कि हम ऑन जॉब सीखते हैं, या हमारे पास लड़कियां आती हैं और ऑन जॉब सीखते हैं. शायद हम आज इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि हम उनको सर्टिफिकेट दे सकें, राइट. तो हम बोलते हैं कि बट उन्होंने शायद 10-10 साल काम किया हो, राइट, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास हुनर है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बोलती है कि आप आइए, आप एक एग्जाम पास कीजिए, हम आपको RPL का सर्टिफिकेट देते हैं, और हम बोलते हैं कि यस, नाउ वी रिकॉग्नाइज व्हाटएवर लर्निंग्स यू हैव इन द प्रीवियस. सो एक उनको भी हम एक बोलते हैं, जो फंडामेंटल्स की मैं बात कर रही थी, उसमें कोई एडवांस ट्रेनिंग नहीं होती, बहुत ही फंडामेंटल ट्रेनिंग है, बट देन वी रिकॉग्नाइज दैट ऑल्सो, राइट. आज वर्कफोर्स 2 tiers और 3 tiers में आपको वैसा ही मिलेगा. तो वी आर रिकॉग्नाइजिंग देम ऑल्सो. इंडिया स्किल्स है, सो देयर इज अ वेबसाइट indiaskills.com, और वहाँ वो लोग ट्रेनिंग्स देते हैं जो बेसिक लेवल्स ट्रेनिंग्स होते हैं. दे आर नॉट चार्ज फॉर, फ्री ट्रेनिंग्स है. सो अगर किसी को ट्रेनिंग्स भी लेनी है तो इंडिया स्किल्स इज ट्रेनिंग विमेन. दे मेक लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स लोन्स के लिए, और सपोर्ट काफ़ी मिलता है. सो द बेसिक लेवल ट्रेनिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. यहाँ पे हम लोग मोटिवेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, अलग अलग सिटीज़ में जो भी हैं, कि आप जैसे एक्सपो लगा है, तो आप आकर के देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, देखेंगे. जैसे आप देखेंगे पूरी टीम आई है वहाँ से, तो हमने बोला स्टे मैं कराती हूँ आपके लिए, आई पेड फॉर देयर स्टे. मैंने कहा टिकट आप कराओ. जैसे आपने बोला 50-50, दैट इज रियली, इट ऑलवेज वर्क. तो आप आके जब देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़े कुएं के बाहर निकल के, तब आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है. बिल्कुल. ऑडियंस की तरफ से एनी क्वेश्चंस फॉर आवर पैनल? यस. I have a question for all of them. How much % of your revenue you think should be invested in education for team Of a education? salon's revenue. Of a salon's revenue. सैलून के रेवेन्यू से कितना हिस्सा जाना अकॉर्डिंग टू मी 30%. चाहिए? सीमा? I don't have a salon, but it depends on your passion. It depends on how much you want to move ahead. You move ahead, your entire staff will upgrade. So it depends. Say, like, you're fantastic with coloring, so which is why I recommended you that do go in for a Vidal Sassoon color course. Now, you won't realize the value of it until you do it. आज इवन 10 years एक्सपीरियंस्ड हेयर ड्रेसर है, मैं बोलूँगी एक बार आप ABC विडाल ससुर में करेंगे, आपका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा.
मैंने right up to my teachers training किया है Vidal Sassoon में. The quality of haircuts is totally different. I was lucky कि मैं पहले से ही मेरी teacher Vidal की qualified थी. In 85 मैंने hair dressing जब किया. But for a person like you, जब मैंने आपका काम देखा है, so at that point, don't think about 20%, 30% या because तू हर साल नहीं करने वाली है Vidal में, पर basic एकदम strong होना चाहिए. So which is why you should plan your funds that okay, I have the funds, जाके करना है. Upgrade आप कर सकते हैं 3 साल के बाद. I mean, a person like me spends lots more on education. My percentage is very high. So इसलिए मैं percentage नहीं passion बोल रही हूँ. But जिसकी salons है, definitely आपके basics के लिए आपको खुद को जाना चाहिए. मैंने मेरा हेयर स्टाइलिंग का बेसिक जॉर्जी कॉट के साथ 4 बार सेम कोर्स रिपीट किया. Till the time I was satisfied कि I can do it like him. जब when I 2021 I won the world championship, Georgie said, I can't take out any mistakes in your work anymore. That's when they stopped teaching me. So it's like that. So it depends on what's the level of passion you have and how much you want to study further. So you upskill yourself so much that your teacher says you know everything. I would call training as an investment. तो अर्बन कंपनी में ये एक माइंडसेट है कि हम इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, राइट? आज की तारीख में वी आर 8 year old and we have already spent 720 crores on training and it's an ongoing process as I said. तो एक पर्टिकुलर नंबर रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज हम ऑन गोइंग करते हैं. अभी हमें बैठ के एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थॉट, आई शुड सिट एंड कैलकुलेट कि ऑन एन एवरेज हम कितना स्पेंड कर रहे हैं. बट अभी मुझे मालूम है कि दिस फाइनेंशियल ईयर वी हैव सो फार स्पेंड 720 crores ओनली ऑन ट्रेनिंग एंड ऑन एन एवरेज मैं बता सकती हूँ कि एक प्रो के लिए मैं करीबन 1 लाख रुपया खर्चा करती हूँ ट्रेनिंग में, सिर्फ उनकी 14 दिन की ट्रेनिंग के लिए, राइट? So that is the kind of training that we believe in, and I don't call it as an expense. I believe it as an investment, क्योंकि मैं उनमें इन्वेस्ट कर रही हूँ करके फिर वो they get the business and our industry level goes up. Yeah. Thank you so much. It was a very interesting panel. A lot of ideas were thrown up in the air, and I'm sure our audience is going to benefit from it. I will request the panel to step forward for a group picture. Thank you so much, Disha, Seema, Unnati, Mahesh. And with that, we are ready for our lunch break. So मिलते हैं lunch break के बाद. I request you all to be here by 2:30. Lunch खाने के बाद एक चक्कर लगा दीजिए प्रोफेशनल ब्यूटी का. आई एम श्योर आपको बहुत सारे सोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगे. बट प्लीज बी बैक एट 2:30 so that we can start with the next session. Thank you.